पुणी देखिबा किछि कांसेप्ट जोटा कि मु कहिथिली प्रीवियस क्लास कि नेक्स्ट क्लास रो हम कंटिन्यू करबा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विषय रे ओके तो एबे इथरे हम देखिबा कि सेल वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल ओके ओके that is the first is known as cell wall तो what is cell wall कौन तो normally we have already discussed about this okay then cell wall is which is present in the plant cell but plant cell सहित okay plant cell सहित cell wall आउरी algal cell fungi एमानक पाखरे भी plant cell माने cell wall देखिया को मिले okay in the prokaryotic cell also has cell wall okay but prokaryotic cell wall is different and this is eukaryotic cell wall and prokaryotic cell wall is made up of peptidoglycan and this is eukaryotic cell wall means plant cell wall bacterial cell plant cell wall is completely different from your bacterial cell wall composition okay we'll discuss about this so hame dekhiba ki kon concept achi so dekho the plant cell can be distinguished from the animal cell by the presence of cell wall okay and it was first discovered by Robert Hooke in 1665 in the cork of the tree and cork tissue ठीक अच्छे तो आम कौन कहि परिबा माने प्लांट सेल रो जोटा कि आम आगरो डिस्कस करि सारी छे गोटे प्लांट सेल रो आउटर कवरिंग को आम कौन कहूचे सेल वॉल कहूचे देन सेल मेम्ब्रेन अच्छे बट एनिमल सेल हैज ओनली सेल मेम्ब्रेन तो आम कौन कहले जेतेबेले फर्स्ट डिस्कवर करथिले एनिमल सेल आमे माने ई सेल विषय रे कोठी सेल वॉल डिस्कवर किए सेल वॉल डिस्कवर करथिले दैट इज रॉबर्ट हुक डिस्कवर करथिले तो मु ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट हु इज रॉबर्ट हुक इज who discovered cell for the first time but जे से जो सेल डिस्कवर करथिले that was the dead cell सब dead cell थिला काहे कि why I told the reason in that class कि मु कहितली कि से गच्छर आउटर मेम्ब्रेन बार्क कर्क को नेकी काटी की देखिथिले जदी कर्क कटा हबो then that is cell wall okay and cell wall is it's a dead layer तो सेति पई that cell is dead tissue से देखिथिले बा dead cell से देखिथिले रॉबर्ट हुक तो के फर्स्ट सेल वॉल डिस्कवर करथिले सेल वॉल इज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट हुक in year 1665 and को माने there is a question in our mind से को गछर सेल देखिथिले ओके को गछर कर्क काटिथिले माने in which tree the Robert Hooke observed the cork tissue that is oak tree okay that is oak tree रो से bark ने के एक्सपेरिमेंट करिथिले a cell membrane is हमें कहि परिबा it is the non living structure and forms the outer covering of the plasma membrane of fungi and plantae okay next देखिबा on concept अच्छे next the cell wall is not only gives the shape to the cell but also protect the cell from the mechanical damage and infection that is the function of cell wall but cell wall of function but outer membrane of function but outer covering of function मु first class रो कहि सारी छी मु already बुझे सारी छी जते बेले भी हमें outer covering देखिबा maybe it is glycocalyx maybe it is cell wall maybe it is cell membrane तो तार common function होची से ताको mechanical strength दबो mechanical strength माने ताको support provide करिवो ताको protection provide करिवो कि cell burst न करि जाओ cell भीतर को कोनोसी antigen invade न करंतु कोनोसी फॉरेन पार्टिकल्स इन्वेड न करंतु बुझिला सेल टा कोलैप्स न करि जाओ सेल्स ब्रस्ट न करि जाओ सेल कंपार्ट माने सेल गोटे प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन हो माने गोटे रूम रो आ गोटे रूम भितरे जेंति गोटे रूम आ गोटे रूम रे जदी मझिरे वॉल न थांदा देन किछि फरक न थांदा किछि कंपार्टमेंटलाइजेशन न थांदा तो सेल वॉल किबा सेल मेम्ब्रेन नो एक्चुअली फंक्शन होची से तो सेल वॉल लो फंक्शन होची ये ताको नॉट ओनली गिव्स द शेप टू द सेल शेप को सेल देबा सहित बट आल्सो इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द मेकानिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन क्लियर नेक्स्ट what is next okay the cell wall the another function cell wall also helps the cell to cell interaction and act as the barrier to undesirable macromolecules okay say barriers protection करूची से आमे ताकू नॉर्मली बुझी परिबा कि सेल वॉल आमे कोन करूची गोटे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची सपोज आई विल ड्रॉ अ डायग्राम लेट्स सी सपोज this is one type of cell
this is a cell, this is a cell, cell 1, cell 2 and cell 3. Okay, आम सब जिन सब बुझिबा गोटे डायग्राम रो. This outer membrane is known as, आमे outer membrane को कौन कहबा? This is the cell wall. This outer membrane is known as, आमे ताको कहबा cell wall. This layer is known as cell wall, this outer membrane. Okay, this is cell wall. तो cell wall कौन करूची? एठी हमें compartmentalization. What is compartmentalization? Suppose मु गोटे एमती डायग्राम ड्रा करूची. एठी किछि compartmentalization अछि. किछि हमें याको सेल 1 2 3 बोली कहि परिबा? नो. काहेकि ना या भितर एक वॉल ही नाही, ये भितर कोनो से बाउंड्री नाही. बुझियोछि? तो एबे यदि से कोन करूछि ताको कंपार्टमेंटलाइजेशन टर्म हम क्लियर हेले कि व्हाट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन. बुझियोछि? ताको कंपार्टमेंट डिवाइड करूछि. नेक्स्ट कोन करूछि? एबे सपोज गोटे इन्वेडर अटैक कला. सपोज दिस इज अ इन्वेडर, से अटैक करूछि. ओके, इन्वेडर जेते बेले अटैक करूछि, इडी फर्स्ट लेयर जे ताको प्रोटेक्शन दोछि से के, दैट इज द सेल वॉल. obviously. Okay, this is हमें कौन कहबा? ये होची सेल वॉल ताको अट्रैक्शन माने ताको फर्स्ट प्रोटेक्शन दोची. सपोज मु कहबी सेल 1 को सेल 2 सहित कम्युनिकेट करिवार अछि. ओके, ताको कम्युनिकेट करिवार अछि माने सेल कोन कथा होची ना, कोन कम्युनिकेट करूची? कोन से जिंस सपोज कोन से ट्रांसपोर्ट करिवार अछि. ओके, ताको सेल टू सेल कम्युनिकेशन कहा जाय. तो कोन से कम्युनिकेशन करिवार अछि तो से कोन करबो? ए बैरियर थ्रू रे करबो. एटा होची सपोज आमे ताको डोर टाइप रे नबा. ओके, इट इज आमे ताको रिलेट करबे कि इट इज अ डोर. तो ऑब्वियसली से ए थ्रू रे कोन करबो? ये या से कनेक्शन, ये या से मींस कम्युनिकेशन करबो. सेल 2 सेल 1 से कम्युनिकेशन करबो और सेल 1 सेल 2 से कम्युनिकेशन करबो. क्लियर? बुझिएला? मींस एटू सब पॉइंट हमें क्लियर हे पारुची कि से को हिसाब रे फंक्शन करि पारुची. ओके, नेक्स्ट देखिबा. मुझे कही कि समस्त अलग अलग टाइप कंपोजिशन अच्छी, अलग अलग टाइप समस्त अलग अलग टाइप सेल वॉल इज प्रेजेंट. तो कंपोजिशन देखिबा. द algae have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. तो algae रो cell wall कौन को नहीं कि made up of है cellulose, galactan, mannans. This is very important to remember. This is very important. Question आसीबो. ओके, तो algal cell wall is made up of, algal cell wall कहाँ को नहीं कि made up of है cellulose को नहीं कि, galactan को नहीं कि, mannan को नहीं कि and minerals को नहीं कि. At which the minerals name is what? That minerals is calcium carbonate, CaCO3. Okay, and while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. जिते बड़े हमें कौन से अलग प्लांट को कहूचे, दिस टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट. कंफ्यूजन हुए माने एग्जाम रे क्वेश्चन पड़े कंफ्यूज टाइप रो. ओके, छुआ एठी कंफ्यूज होंती भी. तो सेति पे हमको से केमिकल्स रो नेम प्रॉपर्ली माने मन रखिया पय पड़िबो, रिमाइंड करिया पय पड़िबो. जेमति सपोज पड़ी गला पेक्टिन. पेक्टिन को सेल वॉल कंपोजिशन ऑप्शंस देइचे. ऑप्शंस इज ऑप्शन 1 इज प्लांट्स, algae, fungi, prokaryotic cell. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज कोन हबो? पेक्टिन इज इट्स द प्लांट सेल वॉल कंपोजिशन. ओके, क्लियर? हमको ये माने हमको ये जो एमानकर ना केमिकल्स रो ना हमको मन रखिया पय पड़िबो. नेक्स्ट अछि कोन? द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ. तो व्हाट इज प्राइमरी सेल वॉल? द प्राइमरी वॉल बा प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल को ही हमें प्राइमरी सेल वॉल कहूचे. बा प्राइमरी सेल वॉल इज आल्सो नोन एज प्राइमरी वॉल. Okay, the primary wall is gradually diminished as the cell mature. और primary wall टा धीरे धीरे कौन है? जिते बड़े गोटे plant टा young अच्छी, जिते बड़े when a plant in the young stage that cell wall type is known as primary cell wall. Okay, हमको mind रखियार अच्छी, गोटे छोटो अच्छी, तो हमें कहबे ना मितले छोटो रु धीरे धीरे पढ़ुचे, that is known as primary class. हमें धीरे धीरे हायर सेकेंडरी ये सब जिन चेंजेस हो जाए, धीरे धीरे बड़ हो जाए, ग्रेजुअली जो आम मैच्योर होचे. तो एक्जाक्टली कंसेप्ट इज सेम इन द प्लांट्स आल्सो. ओके, प्लांट जिते बड़े माने इमेच्योर स्टेज रे अछि बा यंग प्लांट. ओके, यंग स्टेज रे अछि, तार सेल वॉल टा कोन अछि? दैट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल. बट धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल टा डिमिनिश हो जाउछि, मींस वो सेटा ब्रश डाउन हे के सेबे कोठे रे कन्वर्ट हो जाउछि, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी सेल वॉल. Okay, and secondary cell wall कौन होची? The secondary wall formed on inner
इनर साइड ऑफ द सेल सेल इनर साइड रे कोन मिलिबो हमकु सेकेंडरी सेल वॉल देखिया को मिलिबो तो सेकेंडरी सेल वॉल टा को जगह रे मिलुची जेते बेले गोटे प्लांट्स रा मैच्योर कंडीशन को पळे आछी ओके से गोटे ताको हम से जगह रे प्राइमरी सेल वॉल न पाई के हमकु कोन देखिया पे मिलिबो सेकेंडरी सेल वॉल देखिया को मिलिबो ओके नेक्स्ट देखो the secondary cell wall or secondary wall is formed by the addition of new cell wall materials like lignin, suberin, pectin, cutin into cellulose interfibril space. Puchiochi. Next, in xylem, the secondary wall exhibits unthickened or thin areas called the pits that support the intercellular transport. What is xylem? What is xylem? Xylem is what is these are the vascular bundle okay these are the vascular bundle which is present in the plant cell. There is two type of vascular bundle one is xylem and another one is phloem. So what is the function of xylem? That function of xylem is se kon karuchi xylem to it mane ame kahi pariba ki se water suck karuchi okay mane root ru and it se transport karuchi whole over the plant को और फ्लोएम रो काम कोन फ्लोएम आमे कहि परिबा फ्लोएम आमे जेमती कोनसे न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करूची कोनसे फूड ट्रांसपोर्ट करूची दैट इज अकर इन द फ्लोएम ओके तो आमे कोन कहूची जते बेले जाइलेम रो कथा डिस्कशन करूची इन जाइलेम द सेकेंडरी वॉल्स एक्जिबिट थिन एरियाज कॉल्ड द पिट्स ताको आमे कोन कहूचे पीट बोली कहूचे बा पीट मैं ताको पीट कहा जाय जो थिन एरिया को हमें पेट कहते एंड ये कौन करूची ये सपोर्ट करूची द इंटरसेल्युलर सपोर्ट प्रोवाइड करूची सेल को भितर से स्ट्रांग प्रोवाइड करूची सपोर्ट प्रोवाइड करूची ओके क्लियर नेक्स्ट what is unthickened area baju what is the thin area of the xylem that is known as pit okay next dekho the middle lamella okay another new term is known as middle lamella first buchila primary cell wall means when the tree in the young condition will find the cell the cell wall we find at that time that is known as primary cell wall when the tree is gradually mature the type of cell wall we find which is known as secondary cell wall okay next ame kon buchiba middle lamella we'll discuss about this the middle lamella रे जो composition अछि middle lamella composition होची calcium pectate एबे जेमते हमें पढिले कि algal cell wall is made up of algal cell wall कोथरे made up of हेची algal cell wall माने हमें जहा जो chemicals ना पढिले त सहित गोटे chemicals पढिले that is known as calcium carbonate पढिले ओके हमें किछि पढिले जेमते पढिले cellulose पढिले आमे पढिले मानान पढिले गैलेक्टन पढिले ओके ता सहित कोन पढले आमे पढले कैल्शियम कार्बोनेट पढिले तो एग्जैक्टली सेम द मिडिल लैमेला कोथरे मेड अप ऑफ हेची कैल्शियम पेक्टेट रे मेड अप ऑफ हेची दिस टर्म इज वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो ओके तो मिडिल लैमेला को मिडिल लैमेला कंपोजिशन ने हमें कोन केमिकल्स देखिया पे पाउचे कंफ्यूज क्वेश्चन टा सब कंफ्यूजन ही रहइबो एंड ऑप्शंस भी आउट माने क्वेश्चन डायरेक्ट रहइबो बट ऑप्शंस कंफ्यूजिंग रहइबो ओके सपोज ऑप्शन ने अछि कैल्शियम पेक्टेट कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम डिफरेंट टाइप आउ किछ एग्जांपल अछि कोन हो आंसर करेक्ट आंसर हमें से जगह रे कंफ्यूजन न हे कि फॉर श्योर करिवे दरकार द आंसर इज कैल्शियम पेक्टेट ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट अछि the middle lamella is the first formed layer of cell wall and develops from the cell plate during the cell division. In mature plant cell, the middle lamella is the outermost layer of the cell. थरे डायग्राम को मार्क करिबा ए डायग्राम देखिबा ओके देखो एठो हमें जेनसा क्लियर हे परिबा एटे से कहिची कि से होला the middle lamella is the first formed layer of the cell wall. First form layer of the cell wall and develops from the cell plate during the cell division. Next point achi in the mature plant cell the middle lamella is the outermost layer of the cell. Okay एटा को मने केमति रखिबा एटा को हम देखिबा केमति देखो सपोज हमें कहबा ये होचे हमें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट सेल को हमें काटी के हमें ताको देखु छे माइक्रोस्कोप रे एटा हमें बुझी परिबा कि this region is known as lumen माने जो lumen माने सब बड़े the interior region the खाली region जोटा को हमको मिलिबा the space in between anything that is known as lumen okay तो देखो
दिस आउटर लेयर आम जो ए लेयर को कहूचे मुझे रेड रे मार्क करुच्ची ओके जोटा कि रेड कलर रे मार्क करुच्ची दिस इज नोन एज मिडिल लामेला माने मिडिल लामेला सब हमको कौन मिलूची आउटर बाहर मिलूची बाहर लेयर मिलूची नेक्स्ट देख मिडिल लामेला को नहीं कि मु कलर चेंज करुच्ची येलो रे जो जिनस मार्क करुचे दिस लेयर ए लेयर को आम कहूचे प्राइमरी वॉल ताको आम कौन कहूचे प्राइमरी वॉल बोली कहूचे प्राइमरी वॉल परे एठू नहीं के एतिक दूर जहाँ भी आसिला याको आम कहूचे सेकेंडरी वॉल लेयर सेकेंडरी वॉल माने कौन माने सेकेंडरी वॉल माने सेबे मैच्योर स्टेज को पळे आसीची ओके तमाने एटी कौन अच्छी ए होची S1 S2 S3 माने सेकेंडरी वॉल 1 सेकेंडरी 1 2 सेकेंडरी 1 3 एम तीनटा लेयर से देखी ओके तो आम डायग्राम रू कौन बुझी पारिले सेकेंडरी वॉल सपोज मु कलर चेंज करूची देखो दिस एठो दिके मैं दिस टू लेयर ओके दिस टू लेयर एठी हमें मार्क देखि पारुचे तो दिस टू लेयर इज नोन एज सेकेंडरी वॉल बोली हमें कहिबा तो फर्स्ट जोटा मु रेड रे मार्क करिचे दिस लेयर इज नोन एज आउटर लेयर से कोन अछि को जगह अछि आउटर मेम्ब्रेन रे प्रेजेंट अछि देन मिडिल लामेला कोन होछि सबले आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल गोटे आउटर मोस्ट लेयर होछि कोन आउटर मोस्ट लेयर होछि दैट इज मिडिल लामेला ए डायग्राम रे भी जदि हम एलएस याकू लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को काटी के हम यदि स्टडी करबा तो देखो मिडिल लामेला मिलुची देन मिलुची प्राइमरी वॉल देन इज द सेकेंडरी वॉल तो व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर मैं कौन बुझी पारिले कि आउटर मोस्ट लेयर इज मिडिल लामेला okay and middle lamella is made up of or is composed of the chemical name is known as calcium pectate clear next देखिबा से जिनस लिखाई जिनस आम डिस्कस कले कि द मिडिल lamella is composed of calcium pectate the cell wall and the middle lamella may be traversed by the plasmodesmata and the which connect the cytoplasm of the neighboring cell okay what is plasmodesmata means आम गुड़ा जिनस पढ़ा that is the connection that is the junction गोटे cell wall आउ गोटे cell wall communication junction is known as plasmodesmata जोटा कि the cell wall and the middle lamella may be traversed केमती ट्रांसफर होइछि by the help of plasmodesmata ये कौन करूछि कनेक्ट करूछि साइटोप्लाज्म को नेबरिंग सेल तो साइड सेल को से कौन करूछि कनेक्शन करूछि बुझिला सेल वॉल रो कांसेप्ट क्लियर नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नेक्स्ट तो व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज जेतेबेले हमें कोनोसी मेम्ब्रेन सिस्टम डिस्कशन करूचे जेतेबेले मु आगुरु ही बुझी सारी छी जेतेबेले हमें ऑर्गन आ ऑर्गन सिस्टम रे डिफरेंस देखुतले व्हेन वी गेट द नॉलेज अबाउट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम हमें कौन बुझी पाले सेठी हमें ए कंक्लूजन पाइले कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ए सिस्टम देयर मस्ट बी इंक्लूडेड 1 to many ऑर्गेनेल ओके जेतेबेले गोटे रु अधिक ऑर्गेनेल मिसिकी गोटे फंक्शन करूचंते दैट फंक्शन इज नोन एज से फंक्शन से जो ऑर्गेनेल सिस्टम को हमें कहबा सिस्टम से सिस्टम रे निहाती गोटे रु अधिक ऑर्गेनेल पार्टिसिपेशन जरूरी तो आमे कहूचे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ता माने कोन हेतिबो ऑब्वियसली सिस्टम टर्म लागिला माने निहाती गोटे रु अधिक ऑर्गेनेल थिबो okay there is 2 or more than 2 organelle okay तो हमें कौन कहबा देखो एठी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रे there is the 4 organelle which is participate in the endomembrane system these organelles are endoplasmic reticulum golgi body next one is your हमें कहि परिबा lysosome next is vacuole तो कौन अछि देखो many of the membranous organelle are considered together as an endomembrane system because of their function and coordination तार फंक्शन और कोऑर्डिनेशन पाई आमे ताकू कौन कहूचे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोली कहूचे तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स कौन इंक्लूड्स कला आमे डिस्कस करि सारी जे गोल्गी बॉडी लाइसोसोम वैक्यूल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर नेक्स्ट देखिबा से कहिछि नेक्स्ट the mitochondria chloroplast and peroxisomes are not included in endomembrane system because their function is not coordinate with the endomembrane system okay let me give an example to you
suppose if I am digestive system, if I am talking about digestive system विषय if I'll tell about lungs, if I'll tell about kidney, तो is that appropriate? आम appropriate बोली कहि परिबा? No. Why? कहीं डाइजेशन में जो जिनस दरकार से माने एठी किछ माने एमानकर ए ऑर्गेनेल जेमति मु एबे कहली किडनी रो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोनोसी प्रकार तार कोनोसी कनेक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम सहित ता सिस्टम अलगा तार फंक्शन अलगा से अलगा सिस्टम फॉर्मेशन करिवो तार एक्सक्रीटरी सिस्टम से फॉर्मेशन करिवो ता सहित हमर कोनोसी लेना देना माने डाइजेस्टिव सिस्टम सहित तार कोनोसी इशू नाही ओके तो जेते बेले सेमते हम कहबा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिजम एमानकर निजर किछि ना किछि फंक्शन अछि बट से माने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रे कोनोसी प्रकार फंक्शन करू नाहंते से कोनोसी प्रकार पार्टिसिपेशन नाही ताकर बिकॉज़ ताकर कोनोसी रोल ही नाही ताकर कोनोसी काम ही नाही सेठी बुझिला ताकर कोनोसी फंक्शन ही नाही तो सब बेले मन रखिबा जेते बेले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कथा आसीबो जेते बेले चारिटा ऑर्गेनेल पार्टिसिपेशन करूथिबे एंड दैट फोर ऑर्गेनेल्स नेम माने फोर ऑर्गेनेल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi body, lysosome, and another one is vacuole. Clear? Next. This is the endoplasmic reticulum. See the diagram properly. Okay. This is endoplasmic reticulum. We will discuss about this. तो endoplasmic reticulum रे आमे किसी किसी जिंस माने आमे किसी टर्मिनोलॉजी अछि कोन अछि फर्स्ट अछि न्यूक्लियस अछि ओके देन न्यूक्लियर एनवेलप अछि न्यूक्लियर एनवेलप मींस व्हाट that is nuclear membrane or nucleus रा outer membrane is known as nuclear envelope simply आउ कोन अछि एठी rough endoplasmic reticulum लेखाइ छि राइबोसोम लेखाइ छि smooth endoplasmic reticulum लेखाइ छि see the diagram properly okay आउ rough endoplasmic reticulum ऊपर ही हम राइबोसोम लेखाइ छि हमें ता विषय कंप्लीट डिस्कस करबा डायग्राम बुझी गेला डायग्राम रो किछि किछि जिंस हमें एतिकी तो श्योर हमें डायग्राम देखि कहि परिबा there is two type of endoplasmic reticulum one is rough another one is smooth clear आउ किछि कहि परिबा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा डायग्राम रो देखि हमें कोन स्टडी करि पारुछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा न्यूक्लियस रे पाखा पाखे रीजन रे अछि जदि मु गोटे जिंस तुमको डायग्राम देबी सपोज मु तुमको ए डायग्राम देबी ए डायग्राम देखि कि तुमे किछि तो जिंस कहि परिबो समथिंग इज देयर इन योर माइंड ओके समथिंग विल कम इन योर माइंड दैट व्हाट इज दैट कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट आमे रफ और स्मूथ माने किछि गोटे रफ और स्मूथ माने देयर इज टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एति कि बुझा पडुछि एंड किछि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे देयर इज सम बीड्स ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं डायग्राम रे भी बुझी पारु जे देखि के सेठी से बीड्स रे भी लिखि दै छी राइबोसोम जति भी राइबोसोम न लिखि दंदा हम सिंपली बुझी पारंते कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर किछि ना किछि प्रेजेंट अछि बोली हम ताको रफ कहूचे क्लियर another important thing is कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ता लोकेशन कोठी रहउचे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट्स नियर द न्यूक्लियस राइट न्यूक्लियस रा पाखा पाखी एरिया रे कोन अछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ता प्रेजेंट अछि एति हम सब बुझी पारुचे ओके नेक्स्ट देखिबा कि K.R. Porter it is important to remember and so होचनी K.R. Porter okay that person is K.R. Porter this K.R. Porter is in 1953 is first coined the term endoplasmic reticulum described thread like structure in the cell okay so किछि thread like structure हम यदि endoplasmic reticulum को under the microscope study करबा ता कोनोसी थ्रेड जेमति सूता गुडा को पड़ी थाए से किछि सेमति टाइप रा स्ट्रक्चर देखा जाय okay the study of eukaryotic cell reveals the presence of reticulum of a tiny tubular structure scattered in the cytoplasm is called endoplasmic reticulum जते बेले यूकैरियोटिक सेल ला स्टडी चालू थिला एट द टाइम से किछि रेक्टिकुलम देखले रेक्टिकुलम माने किछि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखले नियर द न्यूक्लियस और ताको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोली कहिले ओके द ईआर इज डिवाइडेड इनटू two distinct compartment what is another first one is luminal another one is extraluminal again very important jinsa very important and very easy to understand also okay the luminal means inside the ear extraluminal means cytoplasm okay see the previous slides look diagram ro me buchi paruche suppose this is endoplasmic reticulum okay what is this is endoplasmic reticulum if I will talk about luminal what is luminal compartment and what is luminal means inside so this region is known as luminal see ए जो रीजन माने या भीतर जो रीजन गुडा को आसीबो
ए भितर रीजन तो कमे कहबा लुमिनल रीजन ओके इनसाइड द ईयर जो साइटोप्लाज्म माने हमरे जो कहि परिबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा अछि निहाती गुटे साइटोप्लाज्म रे अछि ना इट्स ए सेलुलर एनवायरनमेंट एटा गुटे सेल भितर सब जिंस अछि ओके सेल भितर जिंस अछि माने सेल हैज फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड नेम इज साइटोप्लाज्म तो चारि पाखरे कोन अछि साइटोप्लाज्म भी अछि सपोज दिस आर द साइटोप्लाज्म ओके तो हमें कहि परिबा जो रीजन टा जेते के रीजन हमको ईयर भितर देखिया पे मिलबा दैट इज द लुमिनल रीजन और जोटा आउटसाइड ऑफ द लुमिनल देखिया पे मिलबा दैट इज द एक्स्ट्रा लुमिनल माने हमें आको कहि परिबा दिस इज एक्स्ट्रा लुमिनल लुमिनल टर्म माने लुमेन माने इनसाइड ये होचे लुमेन जोटा लुमिनल रीजन माने इनसाइड द ईयर एक्स्ट्रा लुमिनल माने लुमिनल रीजन नु आउटसाइड जोटा कि साइटोप्लाज्म एरोन साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म जोटा देखिया पे मिलिबो ताको हमें कहबा एक्स्ट्रा लुमिनल ओके क्लियर हैला बुझिएला बायोलॉजी सब बेले अंडरस्टैंड करिवो कि डायग्राम रो किछि सब बुझिया पे ओके डायग्राम अंडरस्टैंड माने अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट थ्योरी बुझी हे जबो इजीली जते हमें डायग्राम बुझुचे क्लियर देखो लिखा है द ईयर डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस into two distinct compartment one is luminal or inside endoplasmic reticulum another one is extraluminal or cytoplasm clear next see what is this कौन कहि छी को विषय रे कहि छी this is the smooth endoplasmic reticulum this is the rough endoplasmic reticulum this is lumen okay this is lumen just a minute okay this is lumen means inside the ear okay and these are known as cistern वो term लिखा है cistern पढ़िबे से विषय रे एट लिखा है राइबोसोम एटा होची न्यूक्लियस एटा होची रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माने आमे एते के जिंस श्योर हे गले कि the endoplasmic reticulum is present near the nucleus okay actually the location of endoplasmic reticulum is outer membrane of the nuclear envelope रो बाहर रीजन है माने outer membrane of the nuclear envelope outer nuclear membrane रो माने nuclear membrane को लागी के ही कोन थाए तमरो endoplasmic reticulum present थाए तो लोकेशन होची सेठी ओके तो नेक्स्ट यदि हम कहबा एठी किछि टर्म अछि सिस्टर्न ओके एक्चुअली एतो हम स्ट्रक्चर देखिबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रा सेठी हम देखिबा तीनटे टाइप रो नॉर्मली स्ट्रक्चर हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिया पय मिले गोटे होची सिस्टर्न ट्यूबल्स और वेसिकल्स सिस्टर्न माने होची सिंपली द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर द फ्लैट वर्म गोटे जेमते हम टेप देखिचे टेप जोथरे माने टेलर सब माप करे ओके दैट इज द टेप that is tapeworm तो जेमती platyhelminthes phylum रे जित्ती की भी हमें सब माने organism देखिबा that is known as tapeworm or flat गोटे flattened structure को हमें सब बड़े cistern ने बोली करू tubal is tube like structure vesicles is always round in structure okay so actually plasma माने endoplasmic reticulum ए तीनटा form रे generally present रहे okay एबे आसी जिबा जोडा के हमें फर्स्ट डायग्राम रो अंडरस्टैंड करिथिले कि endoplasmic reticulum कोन अछि it is of two type what are they one is smooth endoplasmic reticulum and another one is rough endoplasmic reticulum what hochi rough endoplasmic reticulum how one is rough and another one is smooth एतिके में फर्स्ट यू अंडरस्टैंड करि सारि थिले क्लियर ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट देखो ये होची अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जिंस है से स्ट्रक्चर है कौन स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के न्यूक्लियस पाखरे न्यूक्लियस ऊपर ही कौन अछि माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट अछि दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर आउ दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए डायग्राम रे भी हमें किछ इनसा क्लियर हे परिबा लीव दिस रीजन ओके ए जिंस उडा को छाडो खाली हमें फोकस करबा एठो एति की पोर्शन को एठो एति की रीजन को हमें फोकस करबा मु जोथरे रेड बाउंड्री लगेली ओके कोन जिंस अछि कि एठी किछि beads present there is some yellow color beads right golden color beads and in the smooth endoplasmic reticulum रे एठी जोठी मार्क करिछि कोन से beads नाही कोन से beads अछि एठी is there any beads no okay तो आमे किछि इनसे बुझि पारिले रफ आमे गोटे सरफेस को एथि पय कहउछे काहे कि त सरफेस रे किछि गोटे जिंस प्रेजेंट अछि समथिंग इज देयर
we'll discuss what is that thing, we'll discuss about this, but something is there on the rough endoplasmic reticulum, on the surface of rough endoplasmic reticulum, but smooth, the surface is completely smooth. Okay, we'll look about. See, the smooth endoplasm, the rough endoplasmic reticulum means जाको RER बोली भी कहा जाए, the endoplasmic reticulum bearing ribosome means that yellow beads and that golden beads is present in the diagram, they are the राइबोसोम. हमें फर्स्ट जेतबेले डायग्राम देखिथिले सेठी देखिथिले ना कि राइबोसोम राइट डाउन हेतिला, जदि आउ थरे रिमाइंड कर दोची देखो this diagram हमें डिस्कस करथिले, there is something on the rough endoplasmic reticulum, there is some beads, okay, and this beads एट लिखा हिचे कि these are the ribosome बोली के. क्लियर? तो हमें कोन पढुचे कि rough endoplasmic reticulum रे the surface ऊपर ribosome present अछि. Okay, then tell me, if ribosome is present on their surface, then what is the thing, तार function कौन हेतिबो, से कौन synthesis करि परथबो, what is the function, then obviously the chief function is it's help in protein synthesis. से कोथरे help करिवो, it's help in protein synthesis. कौन लिखा हिची, the endoplasmic reticulum bearing the ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum, and RER is extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. तो RER को जगह प्रेजेंट अछि, माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जगह प्रेजेंट अछि, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. क्लियर? माने डायग्राम रो हम एति जिंस बुझिथिले. ओके, नेक्स्ट कोन अछि, RER is frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis and secretion. RER जदि obviously मु फर्स्ट वे कहि छि कि राइबोसोम प्रेजेंट अछि माने द चीफ फंक्शन कोन हबो, राइबोसोम चीफ फंक्शन इज protein synthesis. The ribosome maybe it's present on the cytoplasm, maybe it's present in on any organelles, then the function is that common function is protein synthesis, and it secretes different type of chemicals, different type of things. Okay, that helps in माने कहि परिबा protein synthesis and secretion. See, this is the rough endoplasmic reticulum. Okay, these are the beads, that black beads is known as ribosome. The ribosome actually present रहिबार होई ताको हम rough endoplasmic reticulum कहूचे, काई के ribosome ही ता surface को rough करूची. Okay, clear? Any doubt? Next, smooth endoplasmic reticulum. तो what is smooth endoplasmic reticulum, हमें कौन बुझी पारुचे, नार हुए हम किछि जिंस जानि पारुचे, स्मूथ, तो सरफेस इज स्मूथ. ओके, गोटे स्मूथ सरफेस रो फंक्शन कोन हबो, जंती किछि बीड्स अछि ताको हमें कहूचे प्रोटीन सिंथेसिस. तो हमें मने तो रखी पारिबा ही काहे कि राइबोसोम प्रेजेंट अछि, राइबोसोम रो चीफ फंक्शन जदी प्रोटीन सिंथेसिस, देन RER रो चीफ फंक्शन आल्सो प्रोटीन सिंथेसिस. देन हमें कौन कहि परबे, जेमते हमें कहि पे लिपिड इज दैट इज ऑयली इन नेचर, हमें ऑयल को स्पेशली लिपिड बोली कहूचे. तो गोटे लिपिड गोटे जगह गोटे सरफेस ऊपर एबे ऑयल पड़ी छै, तो सरफेस कोन हे जाय, माने लिपिड हे जाय, माने कोन हे जाय सरफेस टा, माने स्मूथ सरफेस हे जिवो. आ स्मूथ सहित से कोन हे परिबो, जेते बेला हमें स्मूथ सरफेस माने से किछि ऑयली जिंस ता ऊपर अछि. ओके, तो ता माने हमें कोन कहि परिबा, से जेमति प्रोटीन सिंथेसिस करूची, सेमति स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस. से कोन सिंथेसिस करे, लिपिड सिंथेसिस करे. तो रीड करिबा, इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स द सरफेस स्मूथ व्हिच इज कॉल्ड ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ता सरफेस रे नाही बोली कि कोन नाही बोली कि माने राइबोसोम नाही बोली कि the surface is smooth, and that is known as smooth endoplasmic reticulum. Okay, so what is the major function of SCR? The SCR is major site for synthesis of lipid. Okay, clear? In animal cell, lipid like steroidal hormones are synthesized in the SCR. माने जति के steroidal hormone रही छि, जति के steroid hormone रही छि, से गुडा को in animal cell रे की करूछि, SCR ही synthesis करूछि. Okay, क्लियर? नेक्स्ट कंटिन्यू करिबा. नेक्स्ट कोन अछि, नेक्स्ट स्लाइड देखिबा. देखो, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इज देयर एनी बेड्स ऑन दिस सरफेस, कोन से बेड्स अछि, देयर इज नो बेड्स, कोन से देयर इज नो बेड. ओके, तो हमें तो कोन कहबा, दिस आर द सिंपली मेम्ब्रेन. ओके, कोन से प्रकार बेड नाही से जगह रे. क्लियर? नेक्स्ट देखिबा. तो हमें जति के एबे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे डिस्कस करे देले, ठीक अछि. किछि MCQ सॉल्व करिवा. ओके, कोन क्वेश्चन अछि, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु फर्स्ट ऑब्जर्व सेल वॉल. कोन अब आंसर, सेल वॉल फर्स्ट की ऑब्जर्व करथिले. करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक. वेरी इजी क्वेश्चन.
very easy to know and very easy to remember. Okay, समस्त जना अच्छे एटा के डिस्कवर करथिले रॉबर्ट हुक डिस्कवर करथिले. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इज आउटरमोस्ट लेयर सेल वॉल रो आउटरमोस्ट लेयर को हमें कोन कहिबा करेक्ट आंसर देछि माने हमें यदि कहिबा कौन कौन ऑप्शन देछि मिडिल लामेला प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन हम आम डिस्कस कर सारी कि कौन से गोटे सेल वॉल रो आउटर मोस्ट लेयर आम डायग्राम रे भी देखी द करेक्ट आंसर कौन हम व्हाट इज द करेक्ट आंसर दैट इज द मिडिल लामेला. ओके मिडिल लामेला इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल. क्लियर. नेक्स्ट the plant cells are connected by channels through their cell wall is called means one plant cell is communicate the another plant cell through the help of a channel. There is a channel and that channel is known as plasmodesmata. Options देखिबा desmosomes, plasmodesmata, gap junction, tight junction. What is the correct answer? Correct answer is plasmodesmata. Okay, next देखिबा an extensive network of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm continuous with the outer membrane of nucleus is कौन हबो क्वेश्चन भलो से पढ़िबा. ओके an extensive network of tiny tubular structure बहुत सारा ट्यूब लो कौन होची एक्सटेंशन हेची. ओके scattered in the cytoplasm and continuous with the outer membrane of the nucleus. nucleus रा outer membrane सहित से कंटिन्यू हेची कौन हबो करेक्ट आंसर plasmodesmata haba na. What is plasmodesmata? Plasmodesmata is the connecting link between one plant cell to another plant cell. Okay, it's the junction, it's the communication junction. Okay, or barriers Golgi complex na Golgi complex habani. Okay, endoplasmic reticulum mitochondria. The correct answer kon habo what is the correct answer endoplasmic reticulum. Okay, next dekhiba the following cell organelles is not included under endomembrane system. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जिते बेले भी कुहा होची हां ए भला क्वेश्चन को मार्क करिया पड़िबो. कोन मार्क करबा फर्स्ट हमें कहबा व्हिच इज इंक्लूडेड कहिची या व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड पछरी. व्हाट इज द क्वेश्चन व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड आमे कहा को फोकस करबा नॉट को माने की एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रो भितरे आसुनी. तो नॉट को कोन हबो करेक्ट आंसर कोन अछि देखो लाइसोसोम गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया ईयर. लाइसोसोम आछे कि नहीं आमे आनी छी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रो अंडर रे के आसंती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम गोल्गी बॉडीज वैक्यूल ए चार जन आसंते ताले कोन हबो करेक्ट आंसर व्हाट इज द करेक्ट आंसर को करेक्ट आंसर हबो लाइसोसोम आछे कि नहीं अच्छे. ओके गोल्गी कॉम्प्लेक्स बा गोल्गी बॉडी अच्छे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे देन कोन हबो माने माइटोकॉन्ड्रिया is the correct answer. Option 3 is correct.